Okay, so whatever will be the region is, we will uh, uh, we will consider the OCT which is having the uh, larger larger number of age group. For example, if the OCT is having the normative database starting from 5 years onward, as compared to the OCT which is having the normative database starting from 16 years or 18 years onward, then the OCT which is having the normative database starting from 16 years or 18 years of age group, if if the patient comes having the problem of glaucoma of 15 years old age, and and the user want to do the scan of the disc and want to get the RNFL thickness, then that OCT may give the pop-up message like invalid age, because it doesn't mean that OCT cannot scan that patient, but it means that I have scanned the patient, but I don't have the normative database of 15 years old patient, so that's why I cannot interpret it in color coding. So at that moment, the user will get stuck up because he cannot make a report on glaucoma of that patient, either that patient has a glaucoma or not, because OCT has not normative database of that age group. So in this case, you will be helpless. So try to get the OCT, to buy the OCT which is having the larger normative database. So as per my opinion, the OCT which is starting from 5 years normative database, having 5 years normative database of even pediatrics, will be much better as compared to the OCTs which are having normative database starting from 16 years or 18 years of age group. So it is important to buy to consider these 2 points before buying the OCT. Number one, OCT should have the good resolution. If the resolution is not good, then it is not possible to 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 see the layers and to have idea of what's going on in macular area or disc area. How healthy is the RNFL, or what is the condition of RP. If the resolution is not good, we may we may have problems in interpretation and reporting of OCT. And another second thing is that the normative database should be
starting from 5 years or 6 years or 7 years, so that we don't have any limitation just because of the normative database. तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके पास OCT है और आपने ख़रीदने के बाद ये चीज़ें अगर आप देखें कि यार इसकी रेजोल्यूशन भी अच्छी नहीं है और नॉर्मेटिव डेटाबेस भी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मेटिव डेटाबेस होता है वो ये है कि मुख्तलिफ एज ग्रुप की आप हेल्दी आइज़ को का डाटा OCT में होता है और मुख्तलिफ रीजन्स का, मतलब अमेरिकन आइज़ का होगा, एशियन आइज़ उसमें और क्लासिफिकेशन आ जाती है। तो वो डिफरेंट साइज़ होते हैं हर आँख का नॉर्मेटिव डेटाबेस, क्योंकि हर आँख का चाहे जो जापानीज़ आई है वो डिफरेंट होगी, एशियन आई डिफरेंट होगी, अफ्रीकन डिफरेंट होगी, इस तरह। तो वो इसी तरह उस आई का डाटा भी हेल्दी आई का डिफरेंट होगा। तो उसमें फिर उन डाटा जो हेल्दी आइज़ हैं उनको स्कैन करके एक डेटाबेस बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं कि नॉर्मेटिव डेटाबेस। और फिर उस डेटाबेस को जब कोई पेशेंट आता है उससे कंपेयर किया जाता है उसकी आंख से, और फिर रिज़ल्ट देती है OCT कि आया इसका रेटिना हेल्दी है या नहीं, क्योंकि वो कंपेयर कर रही होती है हेल्दी आइज़ से। कंपेयर करने के बाद वो बता रही होती है कि ये इस एज ग्रुप में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 18 साल का कोई टीन एज यंग आ जाता है और वो एशिया में है या साउथ एशिया में, और उसका नॉर्मेटिव डेटाबेस अगर OCT के अंदर होगा तो फिर वो इंटरप्रिटेट कर सकेगी कि ये जो एग्जिस्टिंग मैंने स्कैन किया आई का, इसका हेल्दी आई से कितना डिफरेंस है। अगर डिफरेंस नहीं होगा तो वो एक कलर कोडिंग देगी, और अगर डिफरेंस होगा तो वो डिफरेंट कलर कोडिंग देगी। तो वो डिपेंड करता है, वो फिर जब इंटरप्रिटेशन जब वीडियो बनाऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो कलर कोडिंग कैसे उसको इंटरप्रिटेट किया जाता है। लेकिन फ़िलहाल ये ज़रूरी है कि कोई भी OCT परचेज़ करने से पहले आप ये ज़रूर देख लें कि उसका नॉर्मेटिव डेटाबेस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ब्रांड का डेटाबेस 16 ईयर्स या 18 ईयर्स से स्टार्ट हो रहा है, अब अगर 15 साल का कोई नौजवान आ जाता है स्कैन करवाने, तो OCT और आपने उसकी डिस्क को स्कैन किया, OCT स्कैन तो कर देगी, लेकिन साथ हो सकता है ये मैसेज भी दे दे कि इनवैलिड एज। इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास इस एज ग्रुप की हेल्दी आइज़ का डाटा नहीं है, इसलिए मैं आपको कलर कोडिंग में आपको इंटरप्रिटेशन की हेल्प नहीं कर सकती कि आया ये आई हेल्दी है या नहीं है। तो इसलिए वो OCT जिसका नॉर्मेटिव डेटाबेस फॉर एग्जांपल स्टार्ट हो रहा है 5 साल से 6 साल से, वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू उन OCTs के जिनका डेटाबेस 18 साल से या 16 साल से स्टार्ट होता है। क्योंकि आपने OCT भी परचेज़ कर ली, आपके OCT की रेजोल्यूशन भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। मतलब फॉर एग्जांपल 2.6 माइक्रोन्स रेजोल्यूशन है OCT की आपकी, जो कि बहुत अच्छी रेजोल्यूशन है। और इसमें ये भी देखा जाता है कि जो रेजोल्यूशन है इसमें जितने नंबर्स कम होंगे, फॉर एग्जांपल अगर 5 माइक्रोन्स रेजोल्यूशन है और 4 माइक्रोन्स रेजोल्यूशन है, तो 4 माइक्रोन्स रेजोल्यूशन अच्छी समझी जाएगी एज़ कम्पेयर टू 5 माइक्रोन्स रेजोल्यूशन। मतलब कि नंबर्स बड़े होने से मतलब ये नहीं है कि उसकी रेजोल्यूशन अच्छी है। जितने नंबर्स कम होंगे 5, 4, 3, 2, मतलब हम नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रेजोल्यूशन कम हो रही है, इसका मतलब